یہاں آپ کو خبر دیں کہ پشاور میں سرکاری ملازمین ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ پشاور پریس کلب کے سامنے ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں اساتذہ اور دیگر محکموں کے ملازمین شریک تھے۔ احتجاجی مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے حق میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے کہا کہ پینشن اصلاحات کے نام پر کسی قسم کی کٹوتی قبول نہیں ہوگی اور پرانے طریقہ کار کو بحال رکھا جائے۔ مظاہرین نے صوبائی ملازمین کے لیے 30% ڈسپلٹی اناؤنس کا اعلان بھی کیا۔ اسکولوں، کالجوں اور اسپتالوں کی نجکاری روکنے اور ٹرانسپورٹ کی کانٹریکٹ بنیاد پر تعیناتی کے خلاف اپنے مطالبات بھی دہرائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے ساتھ ٹیبل ٹاک کے ذریعے تمام معاملات حل کیے جائیں، لیکن اگر حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتی تو 8 جنوری کو گرینڈ میٹنگ بلائیں گے اور اگلا لاہے عمل طے کریں گے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام لاہور میں یوم تاسیس کی مرکزی تقریب منعقد ہوئی، جس میں زندہ دلان لاہور کی بڑی تعداد کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی صدر خالد مسعود سدھو، سیکرٹری جنرل سیف اللہ قصوری، ترجمان تابش قیوم، جنرل سیکرٹری لاہور ڈاکٹر مزمل ہاشمی اور نائب صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے خصوصی خطاب کیا۔ مزید تفصیلات نمائندہ لاہور نعیم انصاری کی رپورٹ میں دیکھیں گے۔ خیبر پختونخوا میں دل کے امراض میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس حوالے سے زائد العمر افراد کے ساتھ ساتھ اب نوزائیدہ بچوں میں بھی دل کے امراض میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو کہ صوبے کے لیے ایک الارمنگ پوزیشن ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 5 نیوز ملک عامر سے، جو اس وقت ماہر امراض قلب ڈاکٹر علی رضا کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عامر، کیا تفصیلات ہیں؟ میں شدت آتی جا رہی ہے، جو صوبے کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ ساتھ جوان اور اب بچوں میں بھی دل کے امراض میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو سامنے آیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ماہر امراض قلب علی رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اچھا سر، بتائیے گا کیا وجوہات ہیں بڑوں کے ساتھ ساتھ جوان اور اب بچوں میں بھی دل کے امراض سامنے آ رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ جی، آپ نے ٹائم دیا۔ یہاں پہ مین ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہماری جینیٹکس ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے۔ تو آپ دیکھیں تو ایشین جو پاپولیشن ہے اس میں آپ کی شریانوں کا سائز، آپ کی ڈیزیزز، آپ کا خوراک کا سٹائل، آپ کا لائف سٹائل بڑا ڈفرینٹ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے رسک فیکٹر جو آپ کے ہوتے ہیں وہ اور بھی انکریز ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہم جینیٹیکلی پرون ہوتے ہیں ڈیزیزز کے، اور پھر ساتھ ڈائبٹیز کی وجہ سے اور باقی ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہم اور بھی اپنے کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہی ساری وجوہات ہے کہ ہمارے یہاں پہ ینگر پیشنٹ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں بنسبت آپ یورپ اور امریکہ میں دیکھیں تو وہاں پہ ایلڈرلی پیشنٹ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں جن کی یہ ڈیزیز ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ ینگر پاپولیشن زیادہ افیکٹ ہوتی ہے انہی وجوہات پہ۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ کچھ زیادہ تر اس میں جو ہے تو موروثی جو امراض ہے وہ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے اس میں آج کل جو جوانوں میں جو ہارٹ کے مسئلے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں دل کے امراض کے، وہ خوراک کی وجہ بھی ہے، اور کچھ زیادہ اس میں جو ہے آج کل انوائرمنٹل جو ہو رہا ہے، ماحولیاتی تبدیلی ہے، اس میں بھی جو ہے اس وجہ سے دل کے امراض میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کمشنر حیدرآباد ڈویژن جناب فیاض حسین عباسی نے عوامی جان و مال کے تحفظ کے پیش نظر حیدرآباد ڈویژن کی حدود میں دفعہ 144 ضابطہ فوجداری نافذ کر دی ہے۔ جاری کردہ حکم نامے کے مطابق نئے سال 2026 کی شب ہوائی فائرنگ، آتش بازی اور پٹاخوں کے استعمال، ون ویلنگ، اسلحے کی نمائش اور اس سے متعلق تمام خطرناک سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ کمشنر حیدرآباد ڈویژن نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ سے تعاون کریں۔ خلاف ورزی کی صورت میں قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دوسری جانب ملتان قاسم بیلا کے سپر سٹور میں مسلح ملزمان نے ڈکیتی کی کوشش کی، لیکن کم عمر لڑکیوں کی جرات کے آگے ملزمان بے بس ہو گئے۔ لڑکیوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزمان سے پستول چھین لیا اور ایک ملزم کو موقع پر قابو کر کے پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ 2 دیگر فرار ہو گئے۔ سپر سٹور میں ملزمان جعلی آن لائن پیمنٹ کے اسکرین شاٹ دکھا کر خریداری میں ملوث تھے، اور پچھلے واقعات میں بھی وہ اسی طریقے سے جعل سازی کرتے رہے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں لڑکیوں کو بہادری سے ملزمان سے ہاتھا پائی کرتے دیکھا جا سکتا ہے، جس سے سپر سٹور میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس حکام کے مطابق فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور جلد انہیں گرفتار بھی کر لیا جائے گا۔
खबर शामिल करेंगे कश्मीर से, जहां पर ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी ही मर्जी से किराए बढ़ा दिए, जिसके बायस मुसाफिरों को तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा तो हुआ नहीं, डीजल की कीमतें भी बरकरार हैं, मगर कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी मर्जी से लोकल किराए बढ़ा दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इख्तियार सोलंकी से। इख्तियार, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर वैगन स्टैंड पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्टर हजरात की जानिब से किरायों में इजाफा कर दिया गया है। जब हमारी यहाँ के मुसाफिरों से बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि ना ही डीजल के रेट बढ़े हैं, ना ही पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर हजरात की जानिब से किरायों में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद मुसाफिरों को तमाम तर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, जब हमारी यहाँ के ट्रांसपोर्टर हजरात से बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि LPG के रेट बढ़ाए गए, इस वजह से हमने किराए बढ़ाए हैं। तब मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से LPG पर गाड़ियाँ चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। एक जानिब से कानून को तस्लीम नहीं किया जा रहा और कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, दूसरी जानिब आवाम पर किरायों का बोझ बढ़ाकर आवाम को मुश्किलात में धकेल दिया गया है। तमाम मुसाफिरों ने हुकूमत वक्त और ज़िले इंतज़ामिया से यही मुतालबा किया कि जो बढ़ाए गए किराए हैं फिलहाल उनको वापस लिया जाए और ज़्यादा किराया लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, मीरपुर खास में लाशारी बरादरी के मर्द ख़वातीन अपने बच्चे के हमरा तीसरे रोज भी सरापा एहतजाज है। प्रेस क्लब के सामने जारी एहतजाजी झरने के बाइस शहर में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस ने रहायशी घरों को निजी कानूनी की जमीन पर मुबैना इंक्रोचमेंट करार देकर हैवी मशीनरी के जरिए मिसमार किया, जिससे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। लाशारी बरादरी के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी ने गाँव का मुहासरा करके कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा की और शक की बुनियाद पर दर्जनों मर्दों को हिरासत में लिया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, वजीर आला सिंध और मीरपुर खास से मुंतखब नुमाइंदों MNA पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी, MNA नवाबजादा मीर मुनव्वर खान तालपुर और सूबाई वजीर सैयद जुल्फिकार अली शाह से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करेंगे पहलवानों के शहर से। गुजरावाला में धुंध ने अपने पंजे गाड़ लिए, शहर भर को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया और स्मोक का भी राज है। सर्दी में भी शदीद इजाफा हो गया और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे गुजरावाले से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी। बताइएगा हाजी, कैसा मौसम देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के सबसे बड़े सर्दी पहलवानों के शहर गुजरावाला में अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आजकल धुंध का राज है। काफ़ी दिनों से धुंध ने यहाँ पर डेरे डाले हुए हैं और धुंध की वजह से जो है बहुत सारी ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा मौसम भी बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है और दूसरी तरफ गुजरावाला जो है ये बिल्कुल एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर छोटी बड़ी इंडस्ट्री भी लगी हुई है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर भट्टियाँ चलती हैं। भट्टियों के धुएं की वजह से यहाँ पर स्मोक ने भी अपने डेरे डाले हुए हैं। एक तरफ तो धुंध का राज है, दूसरी तरफ स्मोक ने भी अपने डेरे डाले हुए हैं, जिसकी वजह से शहरों में बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पर जन्म ले रही हैं। यहाँ पर सांस की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, आंखों की चुभन है और इसके अलावा नजला जुकाम जो है वो भी बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा शहर में हो चुका है, जिसकी वजह से प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल भी बिल्कुल उनमें भी बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। और जब हमारी सभी महरीन से बात हुई, उनका कहना था कि बिल्कुल यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल किया जाए और इसके अलावा घरों से बेजा ना निकला जाए और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल किया जाए, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जाए, अपने बच्चों को घरों तक महदूद रखा जाए। जब हमारी यहाँ पर CTO गुजरावाला से बात हुई, ऐसा बात है, उनका कहना था कि बिल्कुल बेजा सफर से ग्रेज किया जाए, हेलमेट का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो ट्रैफिक के हादसा है उससे बचा जा सके। धुंध की वजह से अपने नगाह जो है काफ़ी कम हो जाती है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए गुजरावाला में तो वो भी 400 से 500 तक चला जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत सारी जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। और बिल्कुल वक्ती तौर पर महकमा माहौलियात कुछ तो छोटे पैमाने पर जो कार्रवाई करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर कार्रवाई ना होने की वजह से यहाँ पर जो गलियों का धुआं है वो शहर भर में फैल जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात हैं। शहरियों को बड़ी परेशानी का सामना भी है और बिल्कुल शहरियों को मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो इंडस्ट्री है इनके खिलाफ भी जो एक्शन लिया जाए। जो भट्टियाँ चल रही हैं कानून के मुताबिक नहीं चल रही, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अमली कार्रवाई की जाए, ना कि कागजी कार्रवाई तक महदूद रहा जाए। और बिल्कुल शहर भर का जो इस वक्त मौसम सरमा में ज़्यादा जो है मौसम सर्द हो चुका है। बिल्कुल धुंध पड़ने की वजह से सर्दी में भी रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। जी
खबर दें आपको कि मुल्तान में निश्तर अस्पताल के शोबा हादसात में जदीद न्यूरोलॉजिकल केयर यूनिट और स्ट्रोक सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया, जिससे फौलेज और दिमागी चोट के मरीजों को फौरी और मयारी इलाज की सहूलत मैसर आएगी। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खां के मुताबिक स्ट्रोक सेंटर 10 बेड्स पर मुश्तमिल है और इससे मेन ICU पर दबाव कम होगा। निश्तर अस्पताल के ICU को भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम्स और बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात फराहम की गई हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महनाज खाकवानी के मुताबिक न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट्स की मुश्तरका सहूलियात से मरीजों को जदीद तब्बी सहूलियात मैसर आएगी। निश्तर एल्यूमनाई के अतिया करदा जदीद तब्बी आलात के साथ नए वार्ड से बर वक्त इलाज और बहाली मुमकिन होगी, जो सेहत आमा के लिए अहम संगे मील है। दादू के मॉडल पुलिस स्टेशन की बहाली के काम में करप्शन का इंकशाफ हुआ है। मॉडल पुलिस स्टेशन का बोर्ड गायब हो गया है। कैंटीन का सामान भी चोरी होने का इंकशाफ। अमले के शॉर्टेज से सालिन परेशान है। थाने में कायम शहीद शब्बीर खोखर पार्क भी तबाहाली का शिकार है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अला बख्श। बताइए अला बख्श। देखें, महकमा पुलिस की जानिब से जो आवाम को रिलीफ देने और पुलिस और जो आवाम के दरमियान जो है जो समाजी राब्ता है वो सोशल करने के लिए सिंध के दीगर अजला की तरह दादू में भी जो है मॉडल पुलिस स्टेशन का क़याम जो है SSP दादू अमीर सऊद मंगसी की जानिब से 7 माह कबल किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है सूरत हाल कुछ बरक्स हो सकी है। मैं आपको बताऊं कि दादू के मॉडल पुलिस स्टेशन पर जो है एक बोर्ड लगाया गया था, जिसकी जो पब्लिक है वो आकर देखेंगे कि ये थाना है, लेकिन वो बोर्ड भी जो है गायब है। अगर बात करें अंदर की थाने में तो वहाँ पर एक रिसेप्शन कायम है और रिपोर्टिंग रूम कायम है। तो मुख्तलिफ एक सेक्शन बनाए गए थे ताकि जो है जिनके जो मसाइल है वो अपने अलग अलग तरीके से वो पेश कर सके। लेकिन उस सूरत हाल के पेश नज़र एक तो एहलकार जो है वो उनकी शार्टेज है, वो मुकर्रर है, उनकी नहीं है। तो दूसरी जानिब जो फर्नीचर था कैंटीन का वो भी जो गायब है, जो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये जो रिहेबिलिटेशन का जो थाने का काम था ये 21 लाख की मालियत से जो है कराया गया था एक मकामी ठेकेदार की जानिब से। लेकिन अब जो है इसकी बहाली का जो काम तो मुकम्मल हो गया, उसके बाद जो है लेकिन थाने की सूरत हाल जो है बदतर हो गई है। इंतज़ामिया की जानिब से देखभाल ना करने की वजह से यहाँ पर एक शहीद शब्बीर खोखर के नाम से एक पार्क भी है, जिसकी देखभाल ना होने की वजह से वो भी जो है जो तबाही किनारे हैं। दादू के शहरी हलकों का DIG हैदराबाद से यही मुतालबा है कि इस पर नोटिस लिया जाए। जी।